Hello student, welcome you all to Explore Learning Center. Okay, in the yesterday videos we have started with the important concept, that is principle of superposition. Okay, so superposition means what? Mixing, or something is acting on a single particle or on a single charge. Okay, so many forces, you can say so many forces are acting, okay, at the same time on a single charge. Then how to calculate the total force and that on that charge particle? Okay, so that is calculated by using the what? Principle of superposition. And yesterday videos, in that video I have explained, if the charges are at in a straight line, okay, or maybe aligned in the what? Straight line, then you have to find out the what? Force on any one charge is due to the what? Other two charges. Okay, so it may be positive, negative, so you have to just draw the vectors itself. Okay, unlike okay, so I will just recall that again. Okay, so you can see here, so this is what the two charges, okay, and you have placed another charge, so I will say this one. Okay, now these are the what? Positive charge, these are the what? Positive charge, so all are positive charge. Now they are aligned in the straight line. Okay, it may be anything, positive, negative, doesn't matter, you have to just draw the vectors. Okay, so now what is the force on this charge due to other charges? Okay, so what will happen? This charge will repel this charge also, and this charge will also repel this charge. Okay, so what is the total force on this charge? It is nothing but the force due to this charge plus force due to this charge. Okay, so now this charge will repel this charge. Okay, so this is what? A vector. Okay, for this one. Okay, so I will say F1, and this charge will also repel this charge being a positive, so this also vector will point in this direction. So both are vectors, both vectors are pointing in the same direction, so you can say the total force on this particle is F1 plus F2. Okay, and F1 is nothing but the what? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Okay, and F2 is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon naught this charge divided by what? The distance between them. Okay, so this is what the in a straight line. It may be anything. If it is suppose negative, then these all the vectors will point in this direction. So in this case also you have to add them. Okay, because both the vectors are pointing. Now suppose if one vector is pointing here in this direction, so what you have to do? Okay, so any vector minus another one vector minus another vector. So which vector is the larger one? That vector you have to take first and then minus the smaller one. Okay, so this is what the concept. And of course we have discussed what? Something like a triangular form. Okay, so if the three charges are placed in the what? Triangle form, then what is the total force on any one charges? Okay, so and with examples, correct? Okay, now we are going to find out what is the force between the four charges. Okay, between the what? Four charges. Okay, so maybe four charges are equal or unequal, doesn't matter. Okay, so suppose this is what? The first charge. Okay, and this is what? Second charge, and this is the third charge, and this is what? The fourth charge. Okay, so I will name here, these charges are Q1, you can say Q2, and this is Q3, and this is what? A Q4. Okay, so now if it is in the form of what? Square. If it is in the form of square, the distance between any two charges is suppose A. It may be anything given. Okay, जो दिया रहेगा वो आपको लेना है. मैंने यहाँ पे A कंसिडर किया, आप X कंसिडर कर सकते हो, Y कंसिडर कर सकते हो, कुछ भी. Okay, then you have to join this first diagonals, because this diagonals also important. Okay, now suppose this is A and this is A, this is nothing but the right angle triangle. Then what is this distance? Okay, you can say this distance you have to know. Okay, so if you calculate using the Pythagoras theorem automatically, okay, first you have to find out this diagonal length. Okay, diagonal length, that is also important here. So diagonal, you can say length of diagonal is nothing but what? This is A square, this is A square is equal to what? Diagonal square. So I will mention here X. Okay, diagonal length is nothing but X. So diagonal square is equal to what? A square plus A square. So X square is equal to what? 2A square. So only X is equal to what? A root 2. X is equal to what? A root 2. Okay, so this diagonal length is how much? A root 2. Okay, now what you have to find out? You have to find out what is the force on fourth charge. What is the force on this fourth charge due to first, second and third charge? Okay, so now you have to draw the vectors. Now this Q1 charge
all are positive, so this fourth charge will be repelled by all the three charges. So q1 will push this charge in which direction? Along the line joining. So this is what the q1 and this is q4. The line joining is nothing but this. Okay, so q1 q4 both are positive, so this charge will repel this charge in this direction. So this is what the force applied by the what? Force F1. Force F1. Okay, now q3 and q4, this is also line joining, so this charge will repel this charge in this direction along the line joining, that is force due to the what? Third charge. And this is what the line joining, this is what the line joining, and this force is nothing but the what? Force due to second charge. Okay, so now I will draw it separately. So this is what the fourth charge, this is what? A fourth charge. One force is pointing, एक फोर्स इसको इस तरफ लग रहा है, दैट इज F1, एक फोर्स इसको इस तरफ लग रहा है, दैट इज F3, और एक फोर्स जो है, ठीक है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो आई विल ड्रॉ इट, ये क्या हो गया? F2. ओके, मतलब इस चार्ज पे, यू कैन से इस वाले चार्ज पे 3 फोर्स लग रहे हैं टोटल. हाँ, तो टोटल फोर्स कहाँ पे होगा? ऑफ कोर्स टोटल फोर्स कुछ तो होगा ना. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है बिटवीन द व्हाट? F1 एंड F3, बिटवीन द F1 एंड F3. ओके, अगर ये F1 और F3, मतलब अभी देखो ये सारे चार्जेस सिमिलर है, तो Q3 जितना इस पर फोर्स लगाएगा Q4 पे, सेम वे Q1 Q4 पे भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल हैपन? ठीक है, अब हमें टोटल फोर्स निकालना है. तो जब भी ऐसे 3 वेक्टर्स मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है. इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है आपको. सो फर्स्ट यू हैव टू टेक द रिजल्टेंट ऑफ दिस F3 एंड दिस वन F1. ठीक है, अब F3 और F1 दोनों सेम ही है, तो बाय यूजिंग द ट्रायंगल लॉस आई विल शिफ्ट दिस हियर. तो वो जो रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट भी यही पॉइंट करेगा इन दोनों का. ठीक है, सो हमें पता है कि नाउ द टोटल फोर्स ऑन Q4. ओके, net force, total force is nothing but the what? Resultant of F1 and F3. Okay, now these two vectors are 90 degree. Okay, so what is the angle between them? Cos of 90. Cos of 90 becomes 0. So only left is what? Under root of F1 square plus F3 square. Okay, plus अब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी तरफ जाएगा, तो हम उसको F डैश मान लेंगे. F डैश. ठीक है, और ये F डैश क्या होता है? यही होता है. ठीक है, प्लस अब ये रिजल्टेंट और ये F2 दोनों साथ में ही है, तो उसको हम F2 से ऐड कर देंगे. ठीक है, सो F नेट जो होगा वो F डैश प्लस F2 होगा, F डैश प्लस F2 होगा. ठीक है, हाँ, अब ये जो F डैश है वो कैसे निकालना है हमें? अंडर रूट ऑफ F1 प्लस F2, क्योंकि F डैश F1 और F3 का रिजल्टेंट है, तो वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में F2 है, तो बोथ आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो F डैश और F2, दिस इज नथिंग बट द टोटल फोर्स. ओके, नाउ हियर F1 इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब F1 क्या है? दिस इज द फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन व्हाट? Q4. सो दिस आर द व्हाट? 2 चार्जेस. सो Q1 Q4 डिवाइडेड बाय व्हाट? A स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस. ओके, सिमिलरली F3 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. करेक्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, sorry, that is Q3 and Q4, that is force between the what? Q3 and Q4 divided by what? A square, distance between them. Correct. And F2 is nothing but the what? Force on fourth charge due to second charge. So 1/4 pi epsilon naught Q2 Q4 divided by what? A root 2 the whole square. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? A√2, तो वो डिस्टेंस हमें लेना है. ठीक है, सो फाइंड दिस सेपरेटली once you get the F1 F2 F3 by placing the value of Q1 Q4 all this value. okay, just F net is equal to what? अंडर रूट ऑफ जो भी वैल्यू मिली है उसका F1 स्क्वायर करो, F3 स्क्वायर करो, प्लस F2 F1. ठीक है, ये पता चला आपको कैसे आया? क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो टोटल फोर्स क्या होता है? इक्वेशन क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F1 F3 cos 90. cos 90 क्या होता है? 0 मतलब ये टोटल टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या है? यही बचा है. करेक्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट. हाँ, अब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो सकता है. वेक्टर का डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है? जैसे मान लो ये अगर आपको पूछा कि Q2 पे फोर्स कितना है इन बाकी फोर्स की वजह से, बाकी चार्जेस की वजह से, हाँ, तो ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, डजेंट मैटर. तो ये मान लो F1 है,
ये F3 है, ये F4 है, करेक्ट। इसकी वजह से इस पे चार्ज, सेकंड चार्ज पे, ठीक है। हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह पे आएगा, दैट इज F डैश, अगेन F डैश प्लस F4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो डजेंट मैटर ऑन विच चार्ज यू आर फाइंडिंग द फोर्स, आपको ये वेक्टर्स ड्रॉ करने आया ना तो बात खत्म, ठीक है। बाकी सब फिर कैलकुलेशन ही है, बाकी सब कैलकुलेशन ही है, ठीक है। सो आई विल make you another that is concept, okay। So suppose these are the what, two positive charges and two negative charges place, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, और ये और एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो आई विल मेंशन हियर, और सबका साइड क्या है, ए है, ऑल आर हैविंग द सेम साइड, दैट मीन्स स्क्वायर है। सो ये ए, ये भी ए, करेक्ट, ओके। सो फाइंड फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3, ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3, ओके। तो ये मान लो मैं Q1 मान लूँगा, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, ओके। अब जॉइन द डायगोनल्स, और डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी, a√2, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ओके। तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी है, a√2, इस डायगोनल की लेंथ कितनी है, वही है, सेम ही है, a√2, ओके। सो नाउ ड्रॉ द वेक्टर्स। हाँ, अब देखो किस पे निकालना है, फोर्थ चार्ज पे। फोर्थ चार्ज कैसे है, नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओके। सो अब इस फोर्थ चार्ज पे तीन फोर्स लगेंगे। तीन फोर्स क्यों, क्योंकि ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, करेक्ट, ओके। सो दिस Q1 चार्ज विल अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग। हाँ, तो Q1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज व्हाट, F1 फोर्स वेक्टर इस तरफ पॉइंट करेगा ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो इस तरफ जाता, नेगेटिव है इसलिए अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट मतलब फोर्स ऐसे लगेगा। सो दिस इज व्हाट F1 फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन Q4, ओके। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव है, करेक्ट, ओके। सो दिस इज व्हाट, attraction, this is what, attraction। so I will mention here F2, I will mention here F2। so this is what, vector, okay। so दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे पॉइंट कर रहा है, करेक्ट, ओके। इस पे मतलब ये चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा है, ये चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा है, और ये जो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये रिपेल करेगा, बट अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग मतलब ये इस तरफ रिपेल करेगा, दैट इज F2। ये क्या होगा, F2, ठीक है। हाँ, अभी अगर डायग्राम निकालूंगा, ठीक है, तो जैसे मान लो ये वो चार्ज है Q4, ये क्या है, Q4 है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट इज F1, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट इज F3, एक्चुअली इट इज़ F3, ओके, फोर्स ड्यू टू थर्ड चार्ज। और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दैट इज़ F2, ओके। देखा कि चार्ज चेंज करने से थोड़ा सा डायग्राम अलग हो जाता है, बस आपको वेक्टर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज द टोटल फोर्स, अब जो टोटल फोर्स आएगा, ठीक है, अब ये देखो इन दोनों के बीच में एंगल बना है, सो F3 एंड F1 उनका रिजल्टेंट तो यहीं पे आएगा, अगर इक्वल है तो ऐसे ही आएगा। सो आई विल मेक इट हियर F डैश, आई विल मेक इट हियर F डैश, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट फोर्स, अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, अगर F डैश बड़ा है और F2 छोटा है, ठीक है, तो F डैश माइनस F2, क्यों, क्योंकि F डैश इस तरफ पॉइंट कर रहा है, F2 उस तरफ पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे देखो F डैश भी यहीं पे पॉइंट कर रहा था, F2 भी यहीं पे पॉइंट कर रहा था, दोनों का ऐड किया हमने, करेक्ट, ओके। अगर सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन ना हो, F2 इस तरफ, F डैश इस तरफ, तो जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने F1 इज ग्रेटर मान लिया है, ठीक है, तो F2 में से माइनस करना पड़ेगा, सो F1 माइनस F2, ओके, ओके। ये हो गया आपका टोटल फोर्स, लेकिन यहाँ पे F डैश क्या है, F डैश इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, ओके। F डैश इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F3, ओके। तो वो F डैश उनका रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस थीटा। लेकिन थीटा या दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 90 बिकम्स 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ इतना ही। सो F डैश इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर। तो ये आपको F डैश ऐड करना है। अब सेपरेटली बस
F1, F2, F3 फाइंड आउट करो. सो F1 इज नथिंग बट द व्हाट, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज ड्यू टू Q1. सो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q4 divided by what, a square, the distance between them. Okay, so this is what F1. F2 क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught. Okay, F2 is nothing but the what, force on Q4 due to second charge. Okay, so second charge and fourth charge, they are the distance at the distance of a root 2. So it becomes what, Q2 Q4 divided by what, a root 2 the whole square. जो भी है आपका डिस्टेंस जो भी दिया रहेगा उसके हिसाब से लेना है, ठीक है. और F3 इज नथिंग बट द 1/4 pi epsilon naught Q3 Q4 डिवाइडेड बाय व्हाट, a square डिवाइडेड बाय a square. तो ये F1 F2 F3 सेपरेटली फाइंड आउट करो, प्लेस द वैल्यूज जो भी दिया है, a जो भी डिस्टेंस दिया है, प्लेस F1 F2 F3 सारा उनका 10⁻⁴ जो भी है सेम रखो और इस इक्वेशन में रख दो, ठीक है. पहले F' फाइंड आउट करो, F' मिलने के बाद यहाँ पे F' और F2. अगर मान लो F2 बड़ा है तो F2 माइनस F' करो, अगर F1 बड़ा है F' बड़ा है तो F' माइनस F2 करो, करेक्ट. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स व्हेन द you can say charges in the form of what, square, charges in the form of square. Okay, so next is okay, so next one I will say, okay, suppose this is the charge, first charge, second charge, third charge और ये हो गया आपका फोर्थ चार्ज. ओके, और इनके बीच वाला डिस्टेंस सेम है, ए मान लो, ठीक है. सिर्फ मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, ए, करेक्ट. ओके, और ये हो गया आपके डायगोनल्स, ये हो गया आपके डायगोनल्स. ओके, तो डायगोनल्स की लेंथ कितनी होती है, a√2, करेक्ट. डायगोनल्स लेंथ बिकम्स a√2. ओके, सो मेक इट लिटिल बिट ब्राइट. ओके, नाउ फाइन, अगर मान लो इनके सेंटर पे, डायगोनल के सेंटर पे एक मैंने चार्ज रखा है Q, इस Q चार्ज पे, ठीक है, इस Q चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा ये हमें निकालना है, करेक्ट. ओके, सो यू कैन हैव दिस क्लियर पिक्चर. इस Q चार्ज पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. ओके, दिख रहा है, करेक्ट. ओके, सो आई विल मेक इट हियर, फाइंड फोर्स ऑन Q चार्ज, फाइंड द फोर्स ऑन Q चार्ज ड्यू टू ऑल दी फोर चार्जेस, ऑल दी फोर चार्जेस, ठीक है. तो ये बाकी के जो चार्जेस हैं 1 2 3 4, इसके वजह से इस पर फोर्स कितना लगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से अट्रैक्शन रिपल्शन आप वेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है. ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है. अब ये भी मान लो पॉजिटिव ही है, ठीक है. हाँ, तो अब ये जो है, ठीक है, अब हर एक चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब ये डिस्टेंस आपको ज़रूरी है. कौन सा, आप मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है. और ये पॉइंट जो है वो O है, ठीक है. तो आपको ये BO, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, तो हर एक चार्जेस के बीच में डिस्टेंस ये जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है. अगर इनका साइड A है तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, हमें पता है कि ये टोटल कितना होता है, डायगोनल लेंथ कितनी होती है. सो आई विल राइट इट डाउन हियर, डायगोनल लेंथ कितनी होती है, a√2 होती है. ओके, ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है. तो BO, अगर ये टोटल लेंथ a√2 है तो BO या फिर DO, CO या फिर AO ये क्या होता है, इसका हाफ होता है, करेक्ट. ओके, तो देयरफॉर AO इज इक्वल टू व्हाट, BO सारे सेम ही है, CO इज इक्वल टू व्हाट, DO इज इक्वल टू व्हाट, a√2 डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ ही करना है ना, करेक्ट. ओके, हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, a√2 डिवाइड बाय व्हाट, इसको मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिखूंगा, क्योंकि 2 कैसे आएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय 2, √2 क्या है तो 2 ही आएगा. सो 1√2 कैंसिल आउट. देयरफॉर ये जो डिस्टेंसेस है AO BO CO DO ये कितना आया है,
ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू। ओके, सो समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस निकालना है क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, इस चार्ज के बीच में इस चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है ना, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए हमें, ठीक है। सो नाउ अब वेक्टर्स ड्रॉ करो, अब वेक्टर्स, ठीक है। सो नाउ सपोज, ठीक है, अब सारे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 इस Q चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ओके, रिपेल करेगा। तो रिपेल कैसे करेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो ये हो गया इसका वेक्टर। सो दिस इज व्हाट, अ वेक्टर। सो आई विल मेंशन हियर F1, ओके। ये Q2 चार्ज इस Q चार्ज को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बीइंग पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग मतलब इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका F2, ये हो गया F2, ओके। ये Q3 चार्ज इसको वापस क्या करेगा, ऐसे रिपेल ही करेगा ना इस तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका F3, ओके। ये Q4 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये हो गया F4, ओके। अब मान लो ये सारे चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सब सेम है, तो ये सारे फोर्सेस भी सेम होंगे। तो ये फोर्स इसको ये फोर्स कैंसिल करेगा, ये फोर्स इसको ये फोर्स कैंसिल करेगा। तो टोटल फोर्स जीरो होगा। कब, जब डिस्टेंस चार्जेस सब सेम है तब टोटल फोर्स इस चार्ज पे जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज जहाँ है वहीं पे रुकेगा, ये चार्ज ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्योंकि जितना F2 है उतना F4 है, जितना F1 है उतना F3 है, ठीक है। तो सारे साइड से ये सेम अमाउंट से खींचा जा रहा है, तो ये कहीं नहीं जाएगा, इट विल बी रिमेन एज इट इज, ओके। इफ ऑल द चार्जेस आर सेम, okay, so I will write it down here, if all the charges and distance charges are same तब टोटल फोर्स इस पे जीरो होगा, ठीक है, याद रखो, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर है वो, ठीक है। नाउ अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं है, आपको कुछ तो निकालना है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका वापस डायग्राम निकालता हूँ। ये अगर चार्ज है Q मान लो, ठीक है। हाँ, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ओके, दो फोर्स ऐसे लग रहे हैं और दो फोर्स इस तरफ लग रहे हैं। तो ये फोर्स कौन सा है, F4 है, ये फोर्स है F3 और ये फोर्स है F1 और ये फोर्स है F2, ठीक है। ये जो डायग्राम है मैंने यहाँ पे निकाला है, करेक्ट, ओके। नाउ अब इन दोनों का डिस्टेंस वगैरह सब पता है, ठीक है। अब हमें निकालना है, अगर सेम चार्जेस नहीं है, अगर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, तो टोटल फोर्स कुछ तो होगा। तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, ये जो दो वेक्टर्स है इन्होंने कुछ तो एंगल बनाया है, इन्होंने कुछ तो एंगल बनाया है, ठीक है। हाँ, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ तो ऐसे आएगा। तो हम इसको F यू कैन से X मान लेंगे, ठीक है। और ये जो है ये दो वेक्टर्स ये दो पॉइंट करें, उनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कुछ तो FY आएगा, ठीक है। हाँ, तो टोटल फोर्स क्या होगा उस चार्ज पे। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये दोनों अपोजिट है, Fx और Fy, ठीक है। तो Fx माइनस Fy, जो बड़ा है वो उसमें से माइनस करना है हमें, जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है, ठीक है। अगर फोर्सेस इक्वल नहीं है तो, ठीक है। अब ये Fx क्या होता है, Fx क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, ओके, Fx ये रिजल्टेंट किसका है, इट इज़ बिटवीन व्हाट, F4 एंड F3, ओके। सो F4 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2 F4 F3 कॉस थीटा, ठीक है। और Fy क्या है, इट इज़ द रिजल्टेंट बिटवीन द व्हाट, F1 एंड F2, ओके। सो इट इज़ नथिंग बट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, 2F1 F2 कॉस थीटा, करेक्ट, ओके। सो ये आ गया, ठीक है। अब इंडिविजुअली F1 F2 F3 सारा फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे F1 क्या होगा, F1 इज नथिंग बट द व्हाट, फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ऑन दी Q, ओके। सो कैपिटल Q, सो आई विल मेक इट हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डिवाइडेड बाय व्हाट, उनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके बीच वाला डिस्टेंस कितना है, हमने निकाला है A√2, A डिवाइडेड बाय √2 द होल स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया F1। सेम F2 इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q डिवाइडेड बाय A√2 दी होल स्क्वायर, सिमिलरली, ठीक है। अब F3 क्या है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q3 Q डिवाइडेड बाय A√2 दी होल स्क्वायर, क्योंकि सारा डिस्टेंस सेम ही है तो सेम ही आएगा, ठीक है। और F4 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q डिवाइड बाय
a root 2 the whole square. Okay, so calculate this f1 f3 f2 f4 सेपरेटली. ओके, वो मिलने के बाद आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा. ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, f4 और f3 इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसके हिसाब से आपने fx निकाला बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो ना, f1 और f3 इनके बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ये हो गया fx, और f2 और f4 इनके बीच का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, ये हो गया fx fy. ठीक है, सो सिमिलरली fx इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ f1 एंड f3, fy इज नथिंग बट द रिजल्टेंट बिटवीन द व्हाट f2 एंड f4. कुछ भी हो उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए. सो यू कैन यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर. ठीक है, सो वंस यू गेट दिस, प्लेस द वैल्यू f4 f1 fx fy फाइंड आउट करो. कौन सा बड़ा है, देखो fy बड़ा है, fx बड़ा है, जो भी बड़ा है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट द टोटल फोर्स. ओके, अगर सारे चार्जेस सारे डिस्टेंस सेम है तो टोटल फोर्स इस पे जीरो लगेगा. टोटल फोर्स इज जीरो. ओके, सो रिमेंबर, सो दिस इज व्हाट द थिंग्स. ओके, नेक्स्ट आता है फोर्स ड्यू टू थ्री चार्जेस. फोर्स ड्यू टू थ्री चार्जेस ऑन a charge placed at centroid of equilateral triangle. Okay, so what it means actually, there is one triangle, that means in the charges are placed in the form of what? Triangle. Charges are placed in the form of triangle. Okay, so here I will say charge q1 is placed, and here charge q2 is placed, and here charge q3 is placed. Okay, now what is the meaning of centroid? Centroid means what? You have to, at the every vertices you have to draw the perpendicular line, perpendicular to what? Other. Okay, so this is the line actually. Okay, so these are the what? The lines. Now you have this center, you have this what? A center. On this center one charge is placed, so I will say capital Q, and this is O, point O position. Okay, so on this charge what is the total force due to Q1, Q2 and Q3? Okay, so all are being a positive, and this is nothing but A, this side is also A, and this side is also A. Okay, now if it is A, what about here to here? Okay, so total length is A, from here to here it is a by 2, here is also a by 2, this also a by 2, and this also a by 2, and here is also a by 2, and here is also a by 2. Okay, now q1 will apply the force on this positive charge to this side. Okay, so I will make it here f1. Okay, because along the line joining, so this is what the distance between them, from here to here, that distance we have to calculate. Okay, so I will tell you that distance. Now q3 will apply the force on this charge in this direction, so I will make it here f3. q2 will apply the force on this charge in this direction, that is f2. Okay, so I will make it here picture once again. So this is what? That charge. So one force is pointing in this direction f1, another force is pointing, that is f2, and another force is pointing f3. Okay, and this is what? Center O, and this is q charge. Correct? Okay, now what is the force? What is the force? Or you can say, suppose this angle is theta and this charge is q. Okay, so angle made by the f3 and f2 is theta. So what is the total force on this? So you can calculate by using what? So first find out the resultant of these two vectors. Which one? f2 and f3, that will point in this direction. So I will make it here f dash. I will make it f dash. So f dash is nothing but the resultant between f2 and f3. Correct? Okay, so therefore but you have to find out what the distance from here to here, that means this distance and this distance and this distance, it is exactly not equal to a by 2. You have to calculate it. Okay, so first of all you have to calculate what? This one, perpendicular distance, all these distance. So this distance and this distance and this distance total. Okay, so I will name it as so A, B, C point. Okay, and this is what? P, Q and R, midpoint. Okay, so you have to first find out what? A,
A2R first, A2R, or you can say any, you can find out anything, C2P or B2Q, because all our distance are same. So I will find out what A2R. Okay, so A2R is nothing but the what? Okay, so if you consider this angle is equilateral angle. Okay, equilateral means what? Total angle is what? 60 degree. So if it is 60 degree, then half this angle is how much? 30 degree. So this is what? 30 degree. If you find out the cos theta here, apply the cos theta. So this is what? The triangle, correct? Okay, so this is what? A triangle. You wish to find out what? This distance. आपको क्या करना है? ये सॉरी ये फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है. A2O, वी नीड व्हाट? A2O. ओके, सो A2O फाइंड आउट करना है तो आपको A2R ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है. हाँ, तो अप्लाई कर दो ये इक्वेशन, ठीक है. सो कॉस थीटा, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओके, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दिस वन, AR divided by what? AB divided by what? AB. So AR is equal to what? You will get around, okay, so AB, not AB, okay, so cos theta is equal to what? AD by AC. Similarly, cos theta is equal to what? AR and this, okay, because you are considering this right angle triangle. So I will show you this right angle triangle. Okay, so you need this distance. Okay, so I will apply the cos theta for this triangle. So it becomes what? AR divided by AB, AR divided by AB. So the total AR divided by AB, so you will get what? AB cos of 30. So AR is equal to what? A cos of 30 becomes root 3 by 2. So AR is equal to what? A root 3 divided by 2. Okay, so this is what the total distance, maybe from A to R, B to Q, or C to P. Okay, but we need what? This distance from here to here, here to here, here to here, and that is almost, it is simple. So the distance, that is A to O, B to O, C to O, C to O. Okay, these are the what? Distance are equal. Okay, and that is why given A is equal to what? AO is nothing but the what? 2/3 of AR, remember. Okay, so whenever you get this is a simple equation. जब भी ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है और जो सेंट्रोइड होता है पॉइंट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होता है, जो टोटल लेंथ है उसके 2/3 होता है, उसके 2/3 होता है, करेक्ट. ओके, सो AO इज इक्वल टू व्हाट? 2/3. नाउ AR इज इक्वल टू व्हाट? A root 3 by 2. Okay, so I will just solve this. AO is equal to what? 2 cancel out. A root 3 divided by 3. A root 3 divided by 3. Okay, so जो AO है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3. So रूट 3 cancel out. So A becomes what? A root 3. A divided by root 3. Okay, तो ये जो AO है, ये BO है, ये CO है, ये डिस्टेंस क्या हो गया? A डिवाइड बाय रूट 3. ओके, नाउ ठीक है. अब इस पे टोटल फोर्स F नेट इज इक्वल टू व्हाट? F नेट इज इक्वल टू व्हाट? F डैश यू कैन से माइनस F1, जो भी बड़ा है उसमें से, अगर ये F डैश बड़ा है तो उसमें से F1 माइनस कर दो, अगर F1 माइनस है उसमें से F डैश माइनस करो, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग अपोजिट, एक लाइन में नहीं है, सो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. हाँ, लेकिन यहाँ पे F डैश क्या है? F डैश इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3. सो इट बिकम्स व्हाट? अंडर रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos theta, 2F3 F2 cos theta, करेक्ट. ओके, सो दिस इज व्हाट? F डैश. एक बार F डैश निकल के आ गया, उसमें से F1 माइनस कर दो. अब आपको F1 फाइंड आउट करना है. F1 क्या है? दैट इज अ फोर्स ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन Q. सो इट इज नथिंग बट व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q डिवाइडेड बाय व्हाट? A2O कितना होता है? A रूट 3 द होल स्क्वायर, ये हो गया आपका F1. सिमिलरली F2 इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q डिवाइडेड बाय व्हाट? A डिवाइडेड बाय रूट 3 द होल स्क्वायर, क्योंकि सारे डिस्टेंस सेम ही है, AO BO और DO यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है. सो F3 इज इक्वल टू व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q डिवाइडेड बाय A रूट 3 D होल स्क्वायर, ठीक है.
ये सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूले पे रिप्लेस करके एफ डैश निकालो, एफ डैश आ गया, F1 भी निकालो इस इक्वेशन से। सो जो बड़ा है, अगर एफ डैश बड़ा है, F1 बड़ा है, तो उसमें से F1 एफ डैश माइनस कर दो पहले, ठीक है। तो जो भी बड़ा है उसमें से माइनस करना है सिंपली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस, ओके। तो थोड़ा सा मतलब एक बार में देखने से आपको पता नहीं चलेगा, ओके। सो यू विल नॉट गेट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो जस्ट वॉच इट मेनी टाइम्स, मे बी 2 times और 3 times, एंड डेफिनेटली यू विल कम टू नो इट, ओके। समझ में आ गया? बस कुछ नहीं, वेक्टर ड्रॉ करना है, रिपेल कर रहा है आप मतलब रिपेल कर रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी देखना, ठीक है। जैसे मान लो ये, अगर ये ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और ये अगर मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा है इसके सेंटर पे, ये मान लो -Q है, क्या है, -Q, ओके। सो हियर अब देखो डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर होगा वो ऐसे पॉइंट करेगा, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, इसका जो वेक्टर है ऐसे पॉइंट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, इसका वेक्टर ऐसे पॉइंट करेगा। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A√3 होता है, सेंट्रॉइड पे है, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो, ठीक है। ये जैसे मान लो F1 हो गया, ये F3 हो गया, और ये F2 हो गया। सो उनका जो रिजल्टेंट है F3 और F2 का, ये F डैश ऐसे आएगा। सो अल्टीमेटली F1 और F2 F डैश हमेशा अपोजिट ही रहेगा। यहाँ पे F डैश ऊपर था, यहाँ पे F1 नीचे है, यहाँ पे उल्टा हो गया क्योंकि चार्जेस मैंने नेगेटिव लिया यहाँ पे, ठीक है। सो कुछ भी हो, यही इक्वेशन लगाना है, करेक्ट, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन use this concept, okay। So try to understand this, especially in square form, this centroid शेप कुछ भी हो सकता है। एक बार आपको समझ में आएगा कि वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, उनका रिजल्टेंट किन दो वेक्टर्स के बीच में आपको रिजल्टेंट लेना है। आप चाहे तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट इस तरफ ले सकते हो, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट हो जाएगा। आप चाहे तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट ले सकते हो, इस तरफ आएगा, तो ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर अपोजिट आएगा, तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, फिर ये माइनस ये करना पड़ेगा। यू कैन मेक इट एनी वे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये वेक्टर ऐसे ही पॉइंट करना है, आप चाहे तो इनके दो बीच का डिस्टेंस ले सकते हो, रिजल्टेंट ले सकते हो। सो वो इस तरफ आएगा कहीं, तो ठीक है, ठीक है। और ये अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, सो बात खत्म, ठीक है। तो बस डायग्राम्स निकालो, और बाकी जो इंडिविजुअल फोर्स होता है वो तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से ही निकलेगा, ओके। सो दिस इज़ व्हाट इनफ फॉर टुडेज लेक्चर, ओके। तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा देर जा रहा हूँ ताकि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आए, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग ही होगा, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व मेनी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स, सो स्टिक टू दिस वीडियो, ओके। वॉच इट मेनी टाइम्स, ओके। और जितना हो सके उतना इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दे विल गेट द बेनिफिट, ओके। सो वॉच इट मेनी टाइम्स एंड डोंट यू कैन से डोंट गेट बोर्ड, ओके। थोड़ा सा मतलब वेक्टर्स वगैरह थोड़ा सा बोर लगता है, लेकिन आप छोड़ दोगे ना तो ये कभी समझ में नहीं आएगा लाइफ में। इसको पकड़ के रखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो इसको, वीडियो तो रहेगा ही हमेशा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।